Okay, so today we are going for a primer designing part 2. In a primer designing part 2, we will see a very different situation actually. In the last lecture, we have seen in a primer designing that here we have used a single nucleotide sequence, and based on that, we have designed the primer. That is, we are using only the one template to search the primers. Okay. Now, what is the one template that we need to understand first? One template means you are using only one sequence, okay, and you are using only one sequence, and based on that sequence only you are designing the primer, okay. So this primer is not degenerate actually. This primer is not degenerate primer, okay. So this is very important word, degenerate. Degenerate means what? uh, Consider a situation that you have used a sequence, and that sequence is of one bacteria E. coli XYZ, and this bacteria's gene, whose name is ABC, you have given as an input into the software, okay, like primer blast. Okay. So what is happening now? You are considering a very specialized condition here actually. You are considering a E. coli with a strain XYZ, and for this strain you are considering a one particular gene whose sequence is known to you, and then that sequence you are putting it into the blast primer. Now consider a situation that you have another strain of yours, ABC, okay, and you are using the same primer which is coming out from the analysis of gene ABC, okay. So that primer, will it be able to amplify, will it be able to amplify the gene of E. coli ABC strain, okay. इसका आंसर हमको चाहिए. So what we have done, just consider a situation. We have considered a one E. coli whose strain is XYZ, in which there is a gene is there whose name is ABC, and that gene ABC have given as an input in a blast primer, and based on that I have got the result. I have got the result, that is forward primer and reverse primer. Okay, and if I do XYZ template plus FP and RP PCR, so definitely मुझे इसका positive result मिलेगा. I will get the positive result because इसी से वो generate हुआ है. But what will happen if instead of using XYZ as a template, I am using this, I will rename it CDE. I will use CDE as a template. So can anybody tell me क्या वो amplify कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्योंकि देखिए दोनों इक्वलाई हैं, ये भी इक्वलाई है और XYZ ये भी इक्वलाई है, ठीक है, CDE वाला. सो ये वही प्राइमर इसके टेम्पलेट को भी आइडेंटिफाई या एम्पलीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? कोई मुझे आंसर दे सकता है? आई होप आपको क्वेश्चन समझा हो. अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ. रिपीट कीजिए. हाँ, मुझे लगा ही रिपीट है क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें. मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है. देखिए आपने जब प्राइमर डिजाइन किया, ठीक है, प्राइमर डिजाइन करने के लिए आपने क्या किया? यू हैव यूज्ड वन जीन सीक्वेंस, राइट. एक जीन सीक्वेंस उठाया, तो वो जीन सीक्वेंस जिससे उठाया, मान के चलते उस ऑर्गेनिज्म का नाम है ई. coli ABC, ठीक है, सॉरी ले लेते हैं XYZ, ठीक है. तो दैट जीन सीक्वेंस इज बिलोंग्स टू ई. coli XYZ. सो आप एक स्ट्रेन का सीक्वेंस ले रहे हैं, राइट, और फिर उसके बेसिस पे आपने प्राइमर डिजाइन किया. तो ये जो प्राइमर है
ये जो प्राइमर डिजाइन हुआ, क्वेश्चन आता है ये कि वेदर it will amplify the only E. coli XYZ gene, or it can amplify any other E. coli gene, the same gene, the same gene. अब आपको समझा क्या? क्योंकि स्ट्रेन है ना, वो स्ट्रेन के बेसिस पे हमने प्राइमर डिजाइन किया है. तो ये भी एक क्वेश्चन हमेशा हमारे सामने रहता है. तो इसका आंसर जो है इट इज नॉट दैट इजी. इसका आंसर जो है इतना आसान नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से नहीं बता सकते कि ये सही में ऐसा होगा या नहीं होगा. अब आपको समझा पॉइंट क्या था? यानी आप अगर दूसरे स्ट्रेन का वो एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, दूसरे स्ट्रेन के जीन का एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, सो कैन योर प्राइमर बी स्पेसिफिक? वो स्पेसिफिक रहेगा या नहीं रहेगा, है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस है. इसका मैं और एक आपको उदाहरण देता हूँ, सिंपल एग्जांपल. ठीक है, सिंपल एग्जांपल है. क्या मुझे कोई बता सकता है कि बॉस टॉरस, होमो सैपियंस, बैट, रैट और डोंकी, ठीक है, ये सारे रिलेटेड है या नहीं है? पहले ये मुझे बताइए, वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट. Bos taurus, Homo sapien, bat, rat and donkey, whether they are related or not? They are related. They are related. Related by what means? कैसे रिलेटेड है बताएंगे? क्या है वो? सारे मैमल्स है, सारे मैमल्स है. ठीक है, अब किसी ने मुझे एक ऐसा क्वेश्चन किया. ठीक है, आपके पास में कोई क्लाइंट आ सकता है, आपका रिसर्चर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, दिलीप, you have to design such a primer. Okay, you have to design such a primer which can anonymously amplify aldolase gene of इन सब ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Dilip, you have to design such a primer which can anonymously amplify aldolase gene of either Bos taurus or Homo sapien or bat or rat or donkey. यानी इसका मतलब क्या है? What does this means? This means that आप एक ऐसा प्राइमर सेट बनाएंगे, ठीक है, जो फॉरवर्ड प्राइमर होगा एंड रिवर्स प्राइमर होगा, which can amplify ALD gene of Bos taurus या Homo sapien या बैट या रैट या फिर आई थिंक इतने थे ना, डोंकी. यानी कोई भी जीनोम दे दूं आपको, यानी किसी का भी टेम्पलेट दे दूं. अब आपको समझ रहे हैं टेम्पलेट ये कौन है? सारे these are all templates. किसी का भी टेम्पलेट दे दूं, all these templates should be getting amplified by your aldolase primer. तो आपको ऐसा प्राइमर बनाना पड़ा कि वो ये कर रहा है, डिमांड कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? ठीक है, एंड व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं. रिक्वायरमेंट क्या है? वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन प्राइमर. ठीक है, फॉर ऑल टेम्पलेट्स. आपको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वन प्राइमर फॉर ऑल टेम्पलेट्स. समझ रहे हैं ना सबको? इन सबके अंदर अल्डोलेज है, वो सारे के सारे अल्डोलेज हमको एम्पलीफाई करने हैं. कोई भी जीनोम दे दे, यानी बैसिलस सॉरी बैट का दे दे, होमोसेपियन का दे दे, बॉस टॉरस का दे दे, रैट का दे दे, डोंकी का दे दे, कोई फर्क नहीं है.
हम एक ऐसा प्राइमर बनाएंगे जो इन सबको एम्पलीफाई कर सकता है। समझा? पर ये इतना आसान है या मुश्किल है ये हमको पता नहीं है। इसके लिए हमको क्या पता रहना चाहिए? उसकी अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है थोड़ा समझ लो। अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी? मेरा पहला क्वेश्चन है, all genes in these mammals are same for the sequence or not? ठीक है, मुझे बताइए all genes in these mammals, जितने भी mammals हमने पढ़े है ना, ये ऊपर वाले, इन सब में उनके जीन सीक्वेंस सेम है या अलग है? अलग होंगे ना सर? हाँ, होंगे ना, लगता तो है। ठीक है ना, लगता तो है। ये कौन है, ऑर्थोलॉगी है या पैरालॉगी है? ऑर्थोलॉगस है, बॉस टॉरस होमो सैपियन बैट रैट डोंकी, या पैरालॉगी है? बताया था ना हमने, ऑर्थोलॉगस मींस क्या होता है, पैरालॉगस। ऑर्थोलॉगस होगा सर। यस, ये ऑर्थोलॉगी है, ये ऑर्थोलॉगी है, यानी ये बिटवीन द स्पीसीज है ना, सारे अलग अलग स्पीसीज है। बॉस टॉरस ने काऊ होमो सैपियन बैट रैट डोंकी सब अलग है, ये ऑर्थोलॉगस है, यानी इसमें सीक्वेंस वेरिएशंस होने के चांसेस है या नहीं है? यस। है। अब सीक्वेंस वेरिएशन यानी एग्जैक्टली क्या है? तो इनके अंदर कौन रह सकता है? स्निप्स, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म रह सकता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म समझता है आपको? व्हाट इज दैट एक्चुअली? जो भी पोजीशन होता है, कभी कभी उसी पोजीशन को मान के चलते कि एक 1 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है और उसके 33rd पोजीशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, 33rd पोजीशन पे 33rd पोजीशन है 33rd नंबर का न्यूक्लियोटाइड, उसमें होमोसैपियन के पास में 33rd नंबर पे ए है। ठीक है, बैट के पास में उसी पोजीशन पे टी है, बॉस टॉरस के पास में उसी पोजीशन पे ए है, फिर डोंकी के पास में उसी पोजीशन पे जी है। ठीक है, और कौन बच गया? रैट बच गया, रैट का उसी पोजीशन पे ए है। ठीक है, तो अगर आप इस पोजीशन को कंसिडर करें तो हमको क्या आउटपुट्स मिल रहे हैं? हमको ये आउटपुट्स मिल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड है या डोमिनेंस जो है वो किसका है? ए। ए का है, यानी ए हमको 3 टाइम्स मिल रहा है, बराबर है। फिर हमको टी मिल रहा है क्या? हाँ टी है, टी कितने टाइम है? 1 टाइम। और फिर है जी, जी है 1 टाइम। ठीक है, ये उसका पैटर्न है। तो एक्चुअली ऐसा है, ए डैश टी डैश जी। समझा क्या आपको? यस सर। इसको बोलते हैं ऐसा। 33 ATG हो गया, यानी 33rd पोजीशन पे उस जीन के अंदर में ATG है, यानी ये तीनों रह सकते हैं, पर इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ए। ए की है, ए की है, आपकी ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये ये वेरिएशन है। ठीक है, ये वेरिएशन है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वेरिएशन हो रहा है तो ये वेरिएशन किसके अंदर है? टेम्पलेट के अंदर है, टेम्पलेट्स है ना, सारे टेम्पलेट्स है। तो जब टेम्पलेट को प्राइमर बाइंड होगा, ठीक है, तो मान के चलता हूं कि मैंने इस पोजीशन के बेसिस पे ही प्राइमर बनाया है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? तीनों तो नहीं रहेंगे उस जगह। समझ रहे हैं ना, मेरा जो प्राइमर बनाया होगा, अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड लेके बनाया हुआ है, ठीक है, तो मेरा जो 33rd नंबर को बाइंड होने वाला जो सेकंड स्ट्रैंड में का जो बॉन्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है, वो क्या रहेगा? टी। करेक्ट है आपका, समझ रहे हैं? प्राइमर में अपोजिट रहेगा ना। पर क्या होगा जब आप ये वाला सीक्वेंस या ये टेम्पलेट नहीं डालते, जहां ए आप उस 33rd नंबर पे कौन है? टी। और आपके प्राइमर के अंदर भी कौन है? टी। तो ये टी टी बाइंड होगा क्या?
नहीं हो पाएगा। No. नो, वो बाइंड नहीं हो पाएगा। या फिर अगर टी भी नहीं है, जी है, तो भी आपका टी बाइंड हो पाएगा क्या? No. नो। No, sir. नो, इसका मतलब है कि आपका जो प्राइमर है, वो प्राइमर क्या बन गया है एक्चुअली? स्पेसिफिक। क्या बन गया है? स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक किन के लिए बना, देखो बताओ बार इनमें से। अगर मेरे प्राइमर में इस जगह ए है, सॉरी टी है, तो किन के टेम्पलेट से बाइंड करेगा और किन के टेम्पलेट से बाइंड नहीं करेगा? Homo sapien, Homo sapiens, Bosporus, bat and और rat. rat. वेरी गुड। होमोसेपियन, बैट एंड रैट, इन्हीं के टेम्पलेट से बाइंड करेगा, यानी इन्हीं तीनों को वो एम्पलीफाई करेगा, राइट। अदरवाइज जो बाकी के दो बचे हुए हैं, यानी कौन बचा हुआ है, डोंकी और बैट, इनको वो बाइंड नहीं करेगा, डोंकी एंड बैट से वो बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिस प्राइमिंग। क्या है ये? मिस प्राइमिंग। पर ये मिस प्राइमिंग एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं होती, ठीक है, समझ रहे हैं? अगर एक न्यूक्लियोटाइड मिस प्राइम भी रहा ना, तो भी पीसीआर आपको पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो कंसिडर करें कि ऐसे अगर दो चार और निगेटिव उसको मिल गए, तो फिर आपका प्राइमर जो है ना, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाएगा, लूजली बाउंड रहेगा, या फिर बाइंड ही नहीं कर पाएगा, या स्पेसिफिक नहीं रहेगा। रिजल्टेंट आपको पीसीआर निगेटिव मिलेगा, समझ रहे हैं? तो होगा क्या ऐसी सिचुएशन में, आपको इससे हमको एक लर्निंग एक्सपेक्ट समझ में आ गया, एक लर्निंग मिली हमको। क्या लर्निंग मिली? लर्निंग ये मिली कि जीन कुछ पार्ट में कंजर्व्ड होता है, हमने पढ़ा था ना, और कुछ पार्ट में वेरिएबल होता है, ठीक है। अब कंजर्व्ड बोला तो एक कंजर्व्ड चीज जो होती है वो वन एंट्री से डिटरमाइन नहीं होती, यानी एक सीक्वेंस से डिटरमाइन नहीं होती, उसको हम 15 16 25 30 50 100 150 200 सीक्वेंसेस से मैच करते हैं, और तब हमको पता चलता है कि ये कंजर्व्ड है उस एरिया के लिए, ठीक है। यानी मैं बताता हूँ आपको, एक से लेके 1000 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है मान के चलते, ये जीन है। तो यहाँ पे एक से 50 न्यूक्लियोटाइड तक कंजर्व्ड है, फिर 51 से लेके अगले 400 तक वेरिएबल है, ठीक है, समझ रहे हैं? फिर 401 से शुरू होता है, फिर से कंजर्व्ड है, और 700 तक जाता है, ठीक है। तो जहां जहां सी है, इसका मतलब समझ जाना कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है और ये है कंजर्व्ड। फिर कितना बचा अभी? 701 से 1000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंजर्व नहीं है। तो हमारे पास में जो कंजर्व रीजन है, ठीक है, वो कितने हैं? कितने रीजन है कंजर्व? दो। दो। कौन से हैं? सी 1 to 1 to 50 and हाँ, 400 and 700. यस, 400 to 700। बाकी के सारे रीजन क्या है? वेरिएबल है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि कौन से पार्ट कंजर्व्ड है, कौन से पार्ट वेरिएबल है? ठीक है, वो सीखने के लिए हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पढ़ेंगे, तब आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वहां तक पहुंचे नहीं है, इसलिए अभी आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए कि हमने 100 सीक्वेंसेस को एक के नीचे एक रखा, और हमने देखा कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए जहां पे एक भी न्यूक्लियोटाइड मिसमैच दिख रहा है। तो इसके बेसिस पे मुझे ये पता चला कि 1 to 50 और 400 to 700 न्यूक्लियोटाइड का जो रीजन है, ये हाईली कंजर्व्ड है। तो अगर मैं प्राइमर डिजाइनिंग करने की बात करता हूँ, ठीक है, ऐसा प्राइमर जो डीजेनरेट है, मैंने बताया था ना आपको, डीजेनरेट प्राइमर, यानी वो सबके अंदर वो एम्पलीफाई करना चाहिए, तो मैं कौन सा रीजन चूज करूंगा, बताइए? ये यूज करूंगा दो, या फिर ये बचा वाले करेंगे 51 to 400 700 एंड 1 to 1000? कंजर्व कौन सा रीजन है? 1 to 50, 400 to 700. हाँ, तो आप क्या बोलोगे? यू विल डिजाइन प्राइमर, ठीक है,
only within 1 to 50 और 400 to 700 न्यूक्लियोटाइड। समझा क्या आपको सबको? समझ रहे? अगर आपने ये किया तो ही आप इन सब के अंदर ऐसा जीन ढूंढ सकोगे, जो ऐसा प्राइमर ढूंढ सकोगे जो सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने इन नॉन कंजर्व्ड एरिया में प्राइमर बनाए तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? वो स्पेसिफिक बन जाएंगे। पॉइंट समझ रहे आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन बेस्ड प्राइमर डिजाइनिंग। ठीक है, यानी पॉपुलेशन लिया आपने, ठीक है, और उन सबको मिला के आपने उसका टेम्पलेट सिलेक्ट किया और उससे आप प्राइमर डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन बेस्ड प्राइमर डिजाइनिंग। कल हमने जो देखा था उसमें सिर्फ एक सीक्वेंस लेके हमने बनाया था, तो कभी कभी ऐसे सीक्वेंसेस क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। रिजल्टेंट आपको दूसरे, अगर आपने दूसरा कोई स्ट्रेन लिया या कोई दूसरी स्पीसीज ली तो शायद उसके अंदर वो काम में नहीं आ सकता, इसलिए इसको बोलते हैं डीजेनरेट। चलो, तो वो अपन यहाँ देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो हमको यूज करना है प्राइमर कॉमन फॉर ग्रुप ऑफ सीक्वेंस। कल हमने ये यूज किया, आज हमको ये यूज करना है प्राइमर कॉमन फॉर ग्रुप ऑफ सीक्वेंसेस। इसमें करना क्या है आपको? सबसे पहली बात है कि आपको वो सीक्वेंसेस निकालने हैं जो एक ही जीन के, ठीक है, या एक ही सीडीएनए के या एक ही एमआरएनए के हैं, और उनको वन बाय वन इस पर्टिकुलर सेक्शन में पुट कर देना है। फिर उन सबको मिला के आपको एक ऐसा प्राइमर मिलेगा जो सबके लिए अप्लीकेबल रह सकता है। ठीक है, तो वो करने के लिए आपके पास में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप आपका जीन डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपका जीन है। मान के चलिए एनसीबीआई में हम जा रहे हैं और उसमें एक जीन ले रहे हैं। हमने अभी एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की है ना, कौन सी स्ट्रेटेजी है? हमको क्या निकालना है? ये है ना, बॉस टॉरस, होमोसेपियन, बैट, रैट और डोंकी, इन सबके कौन से जीन निकालना है? कौन सा जीन निकालना है? अल्डोलेज ए जीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबका अल्डोलेज ए जीन निकालेंगे वन बाय वन। जीन में जाएंगे, ALD ए लिखेंगे, होमोसेपियन, स्पेलिंग गलत हो गई, फिर भी समझ जाएगा जहां तक। यहाँ सिलेक्शन बहुत क्रुशियल है। ठीक है, अल्डोलेज ए ही जीन लेना है बराबर। इसको आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड डेटा सेट्स में जाएंगे, जीन सीक्वेंस फास्टा, ट्रांसक्रिप्ट और प्रोटीन। आपको क्या चाहिए? मैंने अभी क्या बोला, क्या निकालना है? जीन चाहिए। हाँ, तो हम जीन ही लेंगे। ठीक है, या फिर आप यहां से भी जा सकते हैं, नहीं इसमें से नहीं आएगा, यही से आएगा, या फिर यहां से जा सकते हैं सेंड टू में जाके फाइल, फास्टा और फुल टेबल में आएगा, पर यहाँ से भी नहीं आएगा, जहां तक यहीं से लेना पड़ेगा आपको, एंड डाउनलोड। ठीक है, फिर जिप फॉर्मेट में आएगा। जिप फॉर्मेट में अगर आपको नहीं चाहिए तो हम सीधा नीचे चले जाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, दिख रहा है ये रीजन, जीनोमिक रीजन ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स फास्टा, अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो। ये आपका सीक्वेंस आ गया। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके कहाँ रखना है इसको, कहाँ पेस्ट करना है? इस जगह। ठीक है, पेस्ट इट हियर। और आप चाहो तो उसको थोड़ा अच्छे से सेट कर सकते हो, ये हटा दो यहाँ से और यहाँ लिख सकते हैं होमो सैपियंस। ठीक है, ये हो गया, पहला सीक्वेंस सबमिट हो गया। अगला अब नेक्स्ट कौन सा है? बॉस टॉरस लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए हर चीज इंडिविजुअली समझा रहा ताकि आप भी बाद में प्रॉपरली कर पाए। ठीक है,
यहाँ से हटा के हम डालेंगे बॉस टॉरस, सर्च इट, बॉस टॉरस। मेक श्योर करिएगा कि बॉस टॉरस ही आए, ठीक है, कभी कभी कुछ और भी आ जाता है, ठीक है। देखो बराबर आ गया बॉस टॉरस, क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे फास्टा में, वन बाय वन हमको वो करते जाना है, ठीक है। कॉपी दैट, टॉरस, ठीक है। इस तरह से हम सबके सीक्वेंसेस करेंगे। और एक ले लेते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। रैट का लेते हैं, बाकी के नहीं लेंगे, ठीक है। आप बाद में उसको परफेक्टली करके देखना एक बार। रैटस नॉर्वेगिकस यानी रैट। अब हमने 3 ले लिए, ठीक है। तो मैं एक ऐसा प्राइमर बनाने की उसको डिमांड कर रहा हूं कि ये प्राइमर होमोसेपियन का अल्डोलेज ए भी डिटेक्ट करे, ठीक है, बॉस टॉरस का अल्डोलेज ए भी डिटेक्ट करे, और रैटस नॉर्वेगिकस का यानी रैट का भी जीन परफेक्टली डिटेक्ट करे, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेसिफिसिटी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए या जीनस के लिए ना रहे, ऐसा उसको बोल रहे हैं। तो बाकी की सारी चीजें आपको पता ही है, ये सब मैंने कल पढ़ा दिया था। हमको करना है शो रिजल्ट इन न्यू विंडो एंड गेट प्राइमर्स, बस इतना ही डिफरेंस है उसके अंदर, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर ये इससे जो बनेगा वो बनेगा डी जनरेट प्राइमर्स, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। तो जब तक ये आता है तब तक रिविजन्स करते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मुझे उसके आंसर्स बताइए, ठीक है। हमारे पास टेम्पलेट किस किस टाइप के होते हैं प्राइमर डिजाइनिंग के लिए? कैन एनीबडी टेल मी, टेम्पलेट्स कौन से टाइप के होते हैं? सर न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। हाँ, उनमें टाइप बताइए। उसमें कौन से होते हैं? न्यूक्लियर जीनोम है, सर न्यूक्लियर, जीनोमिक, हाँ क्रोमोसोमल, हाँ माइटोकॉन्ड्रियल, सॉइल, एयर, वाटर, डीएनए। यस, समझे। अब इसमें देखिए, आपने वाटर सॉइल डीएनए बोला तो आप ये जरूर बोलिएगा कि ये मेटाजीनोमिक है, ठीक है। तो आपके पास में 3 टाइप के जीनोम हो सकते हैं। इसके अलावा और एक जीनोम होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा और एडवांस पढ़ेंगे, वो है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, है ना। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज यानी कौन से? जैसे प्लाज्मिड्स है, फैज्मिड्स है, कॉस्मिड्स है, ये भी आपके जीनोमिक डीएनए रह सकते हैं एज अ टेम्पलेट। समझा क्या आपको? सो चार टाइप के होते हैं टेम्पलेट्स। पहला तो है आपका न्यूक्लियर जीनोम, सेकंड है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, प्लास्टिड आएगा और प्लाज्मिड्स आएंगे।
फिर आएगा मेटाजीनोमिक सीक्वेंस जहां सॉइल का डीएनए हो सकता है, वाटर का या एयर का भी रह सकता है, और फिर लास्टली आएगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए, यानी वो आर्टिफिशियल सीक्वेंसेस बोलते हैं उनको। चार आपके पास में रह सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके पास में रिजल्ट्स आना शुरू हो गया है, दिख रहा है आपको। तो आपका जो सीक्वेंस है, जो आपने इनपुट में दिया था, वो 12,000 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर का सीक्वेंस है, दिख रहा है आपको। 12,909 के ऊपर का सीक्वेंस है, इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पर इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ प्राइमर पेयरिंग हो रही है वो देखो इसी रीजन में हो रही है, दिख रहा है आपको। 9,000 टू 10,000 और 11,000 टू 12,000। इसका मतलब ये है कि ये रीजन बहुत कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। ये रीजन बहुत कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कंजर्व है और स्पेसिफिसिटी कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है उन्होंने, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। आपका ये जो सीक्वेंस है CAG वाला, ये होमोसैपियन के अनकैरेक्टराइज ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 2 के साथ में, यानी mRNA के साथ भी बाइंड हो रहा है, दिख रहा है आपको। यानी नॉट ओनली जीन सीक्वेंस, पर वो mRNA के साथ में भी स्पेसिफिक है, समझ रहा है क्या। यानी ये दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। फिर सीक्वेंस वेरिएशन का ही कुछ है क्या इसके अंदर, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जहां तक तो नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं है कोई वेरिएशन। ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 1 में भी बाइंड करेगा, पर रीजन ऑफ बाइंडिंग अलग है। देखो 1159 पे बाइंड हुआ, ये कहां पे बाइंड हो रहा है, 1261। फिर ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 66 में भी हो रहा है। चलिए ये सब समझ में आ गया। यानी दिस प्राइमर, ये जो आपने प्राइमर यूज किया, ये यूज कर सकते हैं जिसका टोटल एम्प्लीकॉन 161 न्यूक्लियोटाइड्स का है। फिर सेकंड प्राइमर उसने रिटर्न में दिया आपको, ठीक है। इस तरह से सारे प्राइमर्स उसने पुट कर दिया, पर हमारा मेन एम जो है ना, वो यहाँ पे हमने अभी रख के सेटिस्फाई नहीं किया। आप हम बोल रहे कि यहाँ पे हमारे पास में 10 प्राइमर पेयर रिटर्न में आएंगे। ये प्राइमर पेयर्स है, समझ रहे हैं ना। ये जो है ना, ये लिखा है देखो प्राइमर पेयर, ऐसे 10 प्राइमर पेयर्स रिटर्न में आएंगे। तो पहला वाला प्राइमर पेयर चेक करते हैं कि सही में ये तीनों के लिए स्पेसिफिक है या नहीं है, चेक करते हैं। देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और एक अलग ब्लास्ट ओपन करते हैं फिर से। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में ओपन करता हूँ और यहाँ पे उस सीक्वेंस को डाल देता हूँ, FP और Ctrl+V, ठीक है। फिर मैं ये चेक करता हूँ 1 बाय 1 कि मेरा ये प्राइमर तीनों को बाइंड होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, होमोसैपियन का सीक्वेंस उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ। यहाँ तो पुट नहीं कर सकते, कहाँ पुट करना पड़ेगा मुझे सेकंड सीक्वेंस, अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस। राइट, अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस। अब आपको समझे उसका इंपॉर्टेंस, पेस्ट कर देंगे। देखिए अब आपके पास में सीक्वेंस आ गया है, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना, पूरा आपका जीन है। तो अब ये पूरे जीन में ये सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका प्राइमर इसमें बाइंड होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर नहीं बाइंड हो रहा है तो ये प्राइमर सही नहीं है। चलो चेक करते हैं। हाईली, मोर, समवॉट, क्या करना है, हाईली। हाईली रखना पड़ेगा। ब्लास्ट इट। आ गया मैच, देखो मिल गया। कहाँ बाइंड हो रहा है, कौन से रीजन को बाइंड हो रहा है, जीन के 3192 से लेके 3211 रीजन तक। समझा क्या आपको, और कोई भी मिसमैच है क्या, नहीं। यानी ये प्राइमर यहाँ बाइंड होने वाला है, समझ रहे हैं। 3192 से लेके 3211 तक, समझ गया आपको। फॉरवर्ड यहाँ बाइंड होगा तो रिवर्स कहाँ बाइंड होगा ये देखना पड़ेगा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस उठा के डालेंगे, रिवर्स। तो ये है आपका रिवर्स सीक्वेंस, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ लाएंगे और कंट्रोल V। ये नोट डाउन कर लो पहले, कितना लेंथ है, 3192 से लेके 3211 तक बाइंड हो गया। यानी अगला एम्प्लीकॉन कहाँ बाइंड हो रहा है ये हमको चेक करना है। तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया है, फिर से लास्ट 100% मैच हुआ। फिर से क्लिक करते हैं, कहाँ बाइंड हुआ, 3352 से 3333, यानी 3333 एंड पकड़ना पड़ेगा हमको, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3333 माइनस 3211। समझा क्या आपको, किसी को समझा है या नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? थ्री 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 माइनस 3211 122 बेस पेयर के आसपास बाइंड हो रहा है, ठीक है। 122 का एम्प्लीकॉन आपको इससे मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये एनालिसिस किया जाता है। और एक चीज है कि इसमें कहीं पे भी मिसमैच नहीं है। एक और चीज देखो कि ये जैसे ये हमें फुल बाइंड हुआ, वैसे 292 पोजीशन पे, उसी जिन के 292 पोजीशन पे ये सीक्वेंस फिर से मिल रहा है, दिख रहा है क्या आपको? यानी देखो कहां से, देखो यहां से मैच कर रहा है, इतना मैच कर रहा है, पर वो समझ लीजिए टोटल कितना है उसका देखना पड़ेगा। उसके जैसे 20 है ना, ये टोटल 20 न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें से कितने बाइंड हुए, 10 बाइंड हुए, यानी 50% हुआ। तो अगर ये 50% बाइंड हो रहा है तो यहाँ से डिसलॉज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो बाइंड नहीं रहेगा। ये भी देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये ऐसा और दूसरी बार जगह भी बाइंड हो रहा है, तो ये कहीं पे भी ऐसा बाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि परफेक्ट है और इसी जगह वो बाइंड होने वाला है। यानी आपको एम्प्लीकॉन मिलेगा करीबन 100-150 बेस पेयर का, ये आपको यहाँ से कंफर्म हो गया। फिर उसी तरह आप बॉस टॉरस में भी कंफर्म कर लीजिए। कॉपी, बॉस टॉरस में यहाँ से हटा देना पड़ेगा, इसको क्लियर करो और पेस्ट कर देते हैं। अब ये बॉस टॉरस का है, वी आर कंपेयरिंग इट विद द बॉस टॉरस। कहाँ बाइंड हुआ, 10,000 पोजीशन पे बाइंड हुआ और कोई मिसमैच नहीं है, दिख रहा है। यानी उसने इतना परफेक्ट बनाया है कि इन सब में वो सीक्वेंस कॉमन है। कहीं पे भी मिसमैच मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डीजेनरेट प्राइमर्स, ठीक है। यानी आप कोई भी उसको टेम्पलेट दे दीजिए, बॉस टॉरस का दे दीजिए, रैट का दे दीजिए, होमोसेपियन को, तीनों में वो उसको एम्पलीफाई करेगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपके सारे पीसीआर कंडीशंस प्रॉपर है तो सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अब कोई डाउट है किसी को, सबको समझ गया? चलिए आगे बढ़े, फिर इसको बंद कर रहा हूं मैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर अगेन दिस कैन हैपन वर्चुअली ओनली, और हम लोग इसको एक्चुअल में कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में एक्चुअल कर सकते हैं मैडम। यही प्राइमर आप ऑर्डर कर दीजिए। हाँ, ये प्राइमर से बट सर जो आपने मैचिंग करके देखा सर, हाँ आपने जो मैच करके देखा वो तो वर्चुअली ही कर सकेंगे ना सर? हाँ वर्चुअली वो सब, यानी जैसे हम एम्प्लीकॉन तो भले ही ठीक है, वी कैन सी दिस, ऑर्डर दिस, ये तो मिल रहा है अपने को, बट जो मैचिंग वाला काम आपने किया सर, नहीं मैचिंग वो थोड़ा सा मैचिंग क्या है, उसके भी जीनोम अवेलेबल है ना, बॉस टॉरस के, रैट के और ह्यूमन के। तो हमको ये देखना, बट वो वर्चुअली होंगे ना सर? नहीं वर्चुअली अवेलेबल भी है तो पीसीआर के थ्रू जब हम
जो भी हमें मिलेगा उसका हाँ रिजल्ट जो मिलेगा हाँ सर वो वर्चुअल मिलेगा क्या सर रिजल्ट? वर्चुअल नहीं, आप ये सीक्वेंस लेके आप क्या करेंगे, तीनों के जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करेंगे। हाँ सर। ये प्राइमर आपने ऑर्डर दे दिया, मैंने जैसे कल बताया था आपको कि आप हाँ कंपनी को ऑर्डर दे दीजिए, वो आपको ऑर्डर आपका ओडी में बना के भेज देगा आपके पास। जी। फिर आप क्या करेंगे, पीसीआर लगाएंगे। पीसीआर किसके किसके लगाएंगे, पहला डीएनए ये निकालेंगे, हाँ, होमोसैपियन का निकाल निकालेंगे हाँ। लीजिए, उसके साथ में इसी प्राइमर का पीसीआर लगाइए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा। फिर आप सेकंड पीसीआर रैट के डीएनए के साथ में भी निकाले, उसमें भी आपको अल्डोलेस पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों ये अच्छा। ऐसा प्राइमर, ये प्राइमर इसलिए हमने ऐसा बनाया क्योंकि इसमें हाँ। मिस प्राइमिंग बहुत कम है, और हमने ऐसा रीजन सिलेक्ट किया जो हाईली कंजर्व्ड है सबके अंदर। तो हम ओके। ये अनश्योर्ड नहीं होना चाहते, इंश्योर्ड नहीं बोल रहा, अनश्योर नहीं होना चाहते कि हमने प्राइमर सही बनाया कि नहीं बनाया। यहां से तो 101% करेक्ट है कि हमने प्राइमर बिल्कुल सही बनाया, और वो तीनों के लिए स्पेसिफिक है। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूं मैडम। हाँ सर। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, अभी कोविड में जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है ऐसा बोल रहे लोग। तो जब म्यूटेट हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं, तो जिस जगह म्यूटेशन हो रहा है, अगर वहां हम आपका प्राइमर बाइंड हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वहां प्राइमर बाइंड नहीं हो पाया तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट, निगेटिव मिलेगा आपको। नेगेटिव मिलेगा हाँ। पर वो तो पर्सन पॉजिटिव है, वो तो पर्सन पॉजिटिव हाँ। है ना, इसलिए बाइंडिंग कम। हाँ। बाइंडिंग नहीं हो पाई उसकी प्रॉपरली, इसलिए हाँ। वो ऐसे रीजन ढूंढते हैं। वो उन्होंने प्राइमर भी इतना स्मार्टली डिजाइन किया कि उन्होंने वो जो भी जीन कंसीडर किया उसका हाईली कंजर्व्ड रीजन ही सिलेक्ट किया, नॉन जिसमें म्यूटेशन होने के चांसेस है उनको सिलेक्ट नहीं किया। ओके सर। हाँ, यस तो थैंक इसीलिए यू। डीजेनरेट प्राइमरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक सीक्वेंस लेके आप पूरी दुनिया के वायरस को मैप नहीं कर सकते, इसलिए जिसने भी वैसे वायरस के लिए भी बनाया ना, तो उसने 150-200 कोरोना वायरस के जीनोम को एक के ऊपर एक रखा होगा, जीन को एक के ऊपर एक, और उसमें से ऐसे बनाया होगा, तो ही वो अच्छा प्रॉपरली बन पाएगा। अदरवाइज हमको बहुत फेलियर मिले रहते उसके अंदर। हाँ तो वैक्सीन्स में शायद उन्होंने ऐसे ही सब करके देखा है। वैक्सीन इज डिफरेंट स्टोरीज। डिफरेंट स्टोरी। ओके। वैक्सीन का जब मैं वैक्सीन पढ़ाऊंगा आपको, वैक्सीन बायोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूँ, तब वो मजा आएगा आपको। तीनों वैक्सीन टाइप, दोनों वैक्सीन टाइप जो हम यूज कर रहे हैं वो अलग अलग है। ओके। एक किल्ड वैक्सीन है, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है, ओके। तो वो अलग स्टोरी है। वो मैं जब वैक्सीन बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। पर ये आपको सबको समझ गया ना हाँ कि सर ये जब तक डिजेनरेट नहीं करते तब तक आप उसको मास स्क्रीनिंग में पुट नहीं कर सकते। यानी पॉपुलेशन डायनामिक्स में अगर आपको उसको खरा उतरना है तो उसको डिजेनरेट प्राइमर होना बहुत ही जरूरी है। एक सीक्वेंस के बेसिस पे बना हुआ प्राइमर स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि वहां म्यूटेशंस आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव सीन दिस पार्ट। हमारा प्राइमर का जो कंसेप्ट थे वो सारे अभी क्लियर हो गए हैं हमारे पास में। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टू लर्न अबाउट द जीन कार्ड। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, जीन कार्ड पढ़ना है आज। जीन कार्ड क्या है थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जीन कार्ड एक डेटाबेस है एक्चुअली, एक रिसोर्स है जो आपको बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द जीन्स। जो भी जीन्स आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल देगा आपको, एंड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, आपको उसके आंसर्स आने चाहिए। अगर आप उसके आंसर सॉल्व करते हैं तो फिर आप उसका मटेरियल चाहिए रहता है। मटेरियल यानी आपको उसका फिजिकल मटेरियल चाहिए रहता है। अभी तो ये सब हाइपोथेटिकल है, सब थेरोटिकली चल रहा है कि हाँ जीन होता है, ऐसा होता है, पर आपको रियली ऐसा कुछ चाहिए रहेगा
तो आप कहाँ से मंगवाएंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको एक रैट चाहिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है, पर ये इंसुलिन तभी प्रोड्यूस करे जब मैं उसको टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस दूं, ठीक है, समझ रहे हैं मैडम, आपको समझा दारवेकर मैडम? हाँ सर, समझा। हाँ, मेरे को एक रैट चाहिए जेनेटिकली हाँ। इंजीनियर्ड, ठीक है, ओके वो सर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड रैट ऐसा चाहिए जो ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूस करे, हाँ। पर वो तभी प्रोड्यूस करे जब मैं उस रैट को 45 डिग्री सेल्सियस पे रखूं, ओके। और जैसे ही मैं उसको शिफ्ट कर दूं मान के चलता 30 डिग्री टेम्परेचर पे, तो उसका इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाए, ठीक है, जैसे वाओ। हाँ रुक गया, 30 डिग्री पे रख दिया, अब वो नहीं बनाएगा। पर रैट खुद तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, हाँ। रैट इज अ मेंटेन सिस्टम, वो खुद को मेंटेन कर रहा है, पर उसके बॉडी के अंदर मैंने एक एक वेक्टर पुट कर दिया है, ठीक है, और वो हो सकता है एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है, वो हो सकता है एक्सप्रेशन वेक्टर, और वो एक्सप्रेशन वेक्टर इंड्यूसिबल प्रमोटर के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, इंड्यूसिबल प्रमोटर। अब ये सबको समझता है क्या, ये सारी पॉइंट्स पता है क्या, कि मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल समझाऊं? अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो मैं थोड़ा डिटेल समझाता हूँ कि ये चीज क्या है, अगर पता होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। पता है क्या? No, sir. नहीं पता, ओके, मैं आपको समझा देता हूँ। सी क्या होता है, हमारे पास में प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, सिस्टम्स अवेलेबल है, राइट, सिस्टम्स अवेलेबल है। अब सिस्टम्स क्या है, सबसे पहला प्रोटीन प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो है सेल, ठीक है, और वो यूनिसेलुलर हो सकता है ना, यूनिसेलुलर जैसे ई कोलाई। फिर हमारे पास में सिस्टम है दूसरी जो मल्टी सेलुलर हो सकती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है यानी जैसे रैट है, ये भी आपको बना के दे सकती है। फिर थर्ड सिस्टम जो है हमारे पास में, थर्ड सिस्टम जो है वो होता है बायोरिएक्टर, ठीक है, ये सारे जो है आपको प्रोटीन प्रोडक्शन करके दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन जब हम किसी प्रोटीन के करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये तीनों सिस्टम चाहिए रहते हैं, एक तो सेल सिस्टम यानी इकोलाई सिंगुलर सेलुलर सिस्टम, या फिर सिस्टम मल्टी सेलुलर बीच में भी रैट, या थर्ड हो सकता है बायोलॉजिकल बायोरिएक्टर। यहाँ पे भी हमेशा आपको सेल्स लगते ही है, ऐसा नहीं कि बिना सेल्स के प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, बायोरिएक्टर लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों में हमको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा बायोलॉजी समझ लीजिए। इसकी बायोलॉजी क्या है, जब भी हम किसी प्रोटीन के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, हमको उसका हाई क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है, राइट, हाँ या ना। आज हम इंसुलिन, जितने भी डायबिटिक लोग हैं उनको इंसुलिन दिलाते हैं, तो इंसुलिन कहाँ से आता होगा, कोई मुझे बताएगा? डायबिटिक लोग होंगे ही आपके आजू बाजू में, तो जो इंसुलिन आपको मिल रहा है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बताएगा कोई? पैंक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स। हाँ, पर ये हमारे अंदर है, हाँ। पर आज तो हम इन विट्रो बना रहे ना, हम कहाँ बना रहे, इन विट्रो बना रहे, कोई तो भी बाहर से दे रहा है ना हमको सप्लाई करके, कहाँ बन रहा है वो, कोई बताएगा? ह्यूमिलिन जो कह रहे हैं सर आप, वो? हाँ, जो वायल में आती है ना, जिससे इंजेक्शन से खींच के हम डाल देते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इन विट्रो। हाँ, तो वो कौन बना रहा है? बहुत सारी कंपनीज बना रही है सर। हाँ, तो कंपनी कैसे बनाती है, कंपनी तो खुद नहीं बना पाएगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाती है ना सर। हाँ, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बराबर आपने बोला, पर सोर्स कौन है, किसके अंदर बनता है वो इंसुलिन?
इकोलाई है या यीस्ट है सर? दो इकोलाई सर यीस्ट से भी इकोलाई बनाते हैं सर। इकोलाई, राइट, इकोलाई। और किसी ने तो भी ईस्ट भी बोला, ठीक है, किसी ने तो भी ईस्ट भी बोला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें समझ लीजिए। अगर आप यूकैरियोटिक प्रोटीन बना रहे हैं, यूकैरियोटिक प्रोटीन, ठीक है, अगर आप यूकैरियोटिक प्रोटीन आप बना रहे हैं तो आप ये कंसीडर पहले समझ लीजिए कि आपका प्रोटीन किस टाइप का है। आप बोलोगे ये कौन सी चीज होगी, किस टाइप का है, किस टाइप का है, यानी आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं वो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है पोस्ट ट्रांसलेशन वाला, एंड सेकंड जो होता है वो होता है विदाउट पोस्ट ट्रांसलेशन। एक पोस्ट ट्रांसलेशन वाला होता है और एक विदाउट पोस्ट ट्रांसलेशन। तो आपके प्रोटीन को अगर पोस्ट ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है और आपके प्रोटीन को पोस्ट ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके हिसाब से होस्ट डिसाइड किया जाता है, होस्ट डिसाइड किया जाता है। कोई मुझे बताएगा पोस्ट ट्रांसलेशन अगर किसी प्रोटीन को लगता है तो कौन सा होस्ट लेना चाहिए, इकोलाई लू या ईस्ट लू? इसीलिए जब भी आप साइंस पढ़ो, आपके टीचर ने जो एक शब्द भी बोला कि ऐसा होता है तो उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि साइंस इतना मुश्किल है आगे में समझना। अगर आपने वो ग्राफ्स नहीं किया तभी के तभी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ई कोलाई के अंदर होता है या नहीं होता है, ये मुझे बताइए। ई कोलाई के अंदर उसके प्रोटीन के ऊपर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है या नहीं होता है? नहीं पता, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है क्या, थोड़ा बताएंगे कोई? है ना, ये कुछ पढ़ा होगा ना, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसिलेशन, है ना, ये सारे पोस्ट ट्रांसलेशनल में मॉडिफिकेशन है। यानी अब ये चीज समझ लीजिए, अगर आपके प्रोटीन को पीटी लगता है यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लगता है और आप उसको इन विट्रो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको आप ईस्ट में करिए, ठीक है, या फिर मैमेलियन सेल लाइंस में करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईस्ट और मैमेलियन सेल लाइन ही सिर्फ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कर सकती है आपके प्रोटीन को, ठीक है। अगर आपके प्रोटीन को पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं लगता है तो आप सीधा उसको किस में बना सकते हैं, ई कोलाई में। इसलिए इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन जो है ये प्रोटीन है या पेप्टाइड है? मैंने पूछा था पहले सेशन में, अगर किसी को याद हो तो। प्रोटीन है या पेप्टाइड है? पेप्टाइड। पेप्टाइड है, हाँ, इट्स अ पेप्टाइड, क्योंकि वो 100 अमीनो एसिड से 100 अमीनो एसिड्स के कम है ना। और ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इसको नहीं लगता, इसलिए आप आसानी से इसमें किसमें बना सकते हैं, ई कोलाई में। समझ लिए, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ई कोलाई में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, ई कोलाई में एक्सप्रेस किया जाता है। हाँ, तो हम कहाँ से शुरुआत किए थे, देखिए हमारा जीन कार्ड का मेन एम था, तो हमारा ये एम था कि ऐसे कुछ बनाने हैं हमको, रैट प्रोड्यूस 45 डिग्री 30 ऐसा। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, है ना, यानी जब भी हम कोई जीएमओ बनाते हैं, है ना, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका सबसे पहली बात तो आपको क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल। अप्रूवल मिलने के बाद में ही आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। तो काम शुरू करने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ता है वो होता है आपका कंस्ट्रक्ट क्रिएट करिए। क्या करिए, क्या क्रिएट करेंगे आप, क्या बोलते हैं, क्या शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्ट। आप बोलोगे व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्ट? कंस्ट्रक्ट यानी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
आपको सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन क्या लेना है कि आपको उस आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में एक्सप्रेस करवाना है। एक्सप्रेस करवाने के लिए आपके पास में दो होस्ट है, एक है पीटी वाला और एक है पीटी नो वाला। तो आपको क्या करना है, कौन सा लेना है ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे आप कंस्ट्रक्ट बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए आप यूज करेंगे वेक्टर। अब आपके पास में वेक्टर अलग अलग है, प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, फैज्मिड है ना, याक है, फिर बैक है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स है आपके पास में। इनके अंदर ये व्हाट यू कैन से, अभी तक के इसके अंदर में इंसर्ट नहीं डाला है आपने, है ना। इंसर्ट यानी आपका फॉरेन डीएनए नहीं डाला, ये ओरिजिनल है, ठीक है। फिर आप इसमें आप इंसर्ट डालेंगे ना, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, उसको जीओआई भी बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा काइमेरिक सीक्वेंस। क्या हो जाएगा, काइमेरिक सीक्वेंस, ठीक है। तो काइमेरिक सीक्वेंस यानी कि आप पहले वो ओरिजिनल था, प्लाज्मिड अपना नॉर्मल था, कॉस्मिड ऐसा, पर आपने जैसे उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया वो हो जाएगा काइमेरिक सीक्वेंस। यानी अब आपने आपका कंस्ट्रक्ट रेडी कर लिया। अब ये कंस्ट्रक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है क्लोनिंग। अब हम सब दोनों टाइप देख रहे हैं, एक्सप्रेशन और क्लोनिंग साथ साथ में। एक्सप्रेशन वेक्टर अगर है आपका तो आपका जीन जो होगा वो क्या देगा आपको, प्रोटीन। और अगर वो सिर्फ क्लोनिंग वाला है तो वो सिर्फ क्या देगा आपको, डीएनए। डीएनए कॉपीज में देगा। ये हो गया। ये करने के लिए आप पुट करेंगे इसको होस्ट में। होस्ट आपके अभी मैंने अभी समझा आपको, इकोलाई हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, या सेल लाइन हो सकती है, या इवन रैट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके होस्ट है, सारे आपके होस्ट है यहाँ पे पड़े हुए। इनके अंदर आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करवाएंगे। सबको आइडिया क्लियर हो रही है, कोई डाउट है क्या? ये पॉइंट समझ गए आपको पूरे? शुरुआत यहाँ से होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसका अप्रूवल आप लेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट के लिए आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसको एक्सप्रेस करवाना है तो होस्ट कौन सा है, ठीक है। होस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वाला चाहिए या नहीं चाहिए। फिर वेक्टर डिसाइड करेंगे कौन से टाइप का वेक्टर चाहिए, उसके अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट करेंगे, उसके बाद में वो काइमेरिक सीक्वेंस बन जाएगा। ये काइमेरिक सीक्वेंस आप दो टाइप के रह सकते हैं, एक्सप्रेशन वाले और क्लोनिंग वाले। तो ये एक्सप्रेस भी करेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो सिर्फ डीएनए दे देंगे। ये हो जाने के बाद में ये जो कंस्ट्रक्ट है किसके अंदर पुट करेंगे, होस्ट के अंदर। होस्ट ये हो सकते हैं इकोलाई, ईस्ट, सेल लाइन, या फिर रैट, या माउस, या चिंपांजी, गिनी पिग, कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे आपको आपका एक्चुअल प्रोटीन प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, इतना सारा करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको कौन सा वो सोर्स है जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको वेक्टर खरीदना है। कौन खरीदना है, वेक्टर। कौन देगा आपको PBr322, कहां से मिलेगा? डू यू हैव एनी आइडिया कि कहां से मिलता है PBr322? सीताबर्डी में मिलता है क्या? अपना बाजार, बिग बाजार में मिलता है PBr322? नहीं मिलता ना, है ना। अपने कॉलेज में भी नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलता। इसके सोर्सेस अलग अलग है, ठीक है। फिर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास में जीन है, तो जीन एक्सप्रेस होता है या सीडीएनए एक्सप्रेस होता है, बताइए। क्या, कौन एक्सप्रेस होता है? तो जीन एक्सप्रेस होते हैं। जीन एक्सप्रेस होते हैं। और क्या देते हैं, जीन एक्सप्रेस होके क्या देते हैं? फिर भी देखो, फिर से क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ गया। जीन एक्सप्रेस होता है डेफिनेटली, पर अगर वो यूकैरियोटिक जीन है
तो आप वेक्टर में डालेंगे कि यूकैरियोटिक सीडीएनए पुट करेंगे या फिर यूकैरियोटिक सीडीएस पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे आप वेक्टर के अंदर? क्या पुट करेंगे बताइए? वेक्टर के अंदर क्या पुट करेंगे यूकैरियोट का? सीडीएस, कोडिंग सीक्वेंस पुट करेंगे हम हमेशा, ठीक है? इसलिए वेक्टर के अंदर हमेशा प्रोटीन का सीडीएस डालना है हमको। तो ये सीडीएस सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा आपको? कैसे उसको आप वेक्टर के अंदर पुट करेंगे? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। तो ये सब सॉल्व करने के लिए देयर आर कंपनीज, ठीक है, बायोटेक कंपनीज, ठीक है, बायोटेक कंपनीज आते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर में भी है, दोनों तरफ है। आप इन कंपनीज को कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है? कांटेक्ट करेंगे और फिर आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको समझाएंगे, उसके बेसिस पे वो सॉल्व करके देंगे। और ये सब समझने के लिए हमको जो आज वेबसाइट देखनी है वो है जीन कार्ड, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं सही में जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ में, तो ये वेबसाइट बहुत काम की चीज है, जीन कार्ड। ये है वो वेबसाइट genecard.org। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इसमें एक चीज याद रखिए, आपको सारे ह्यूमन के ही जीन्स मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर हमको अगर बैक्टीरिया के साथ काम करना है तो आप डायरेक्टली इन कंपनीज से बात कर सकते हैं, ठीक है? देयर आर कंपनीज, दीज कंपनीज आर देयर, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज करनी है। पर ये जो वेबसाइट बनाई है स्पेशली ह्यूमन जीन्स के लिए बनाई है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जीन, ह्यूमन जीनोम के ऊपर में या जीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। तो ये वेबसाइट एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा देख लीजिए। जीन कार्ड इज अ सर्चेबल इंटीग्रेटिव डेटाबेस। इंटीग्रेटिव यानी इसमें एक से ज्यादा वेबसाइट्स पे जाने की फैसिलिटी है। दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन ऑन ऑल अनोटेड एंड प्रेडिक्टेड ह्यूमन जीन्स। यानी जो अच्छे से पता है उन जीन्स के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन देता है, और जिनको प्रेडिक्ट ही किया है पर अभी तक के लेबोरेटरी में कंफर्म नहीं किया गया उनके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। So the knowledge base automatically integrates gene-centric data from more than 150 web sources। इसने ऐसा किया है कि 150 वेबसाइट्स को एक जगह लाके खड़ा कर दिया। And that includes genomic, transcriptomics यानी mRNA, proteomics, genetic, clinical and functional information। So 150 वेबसाइट्स अब आप एक जगह देख रहे हो, ऐसा समझिए। आपको 150 वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं, सब एक जगह मिल गया। तो इतना सुंदर उसने बनाया है। इसमें क्या क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे आपको ह्यूमन के 20,000 20,678 प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? देन आरएनए जीन्स 2,80,691 है, ये अलग अलग है उसके, ठीक है? एमआईआरएनए आपने पढ़ा होगा, आरआरएनए टीआरएनए तो पढ़ा ही है, ठीक है? अलग अलग टाइप के सारे यहाँ पे आरएनए मिल रहे हैं, बायोलॉजिकल रीजन्स एंड सब इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अल्टीमेटली इट्स अ ह्यूज इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो चलो इसको पढ़ते हैं। आप यहाँ पे आपको अगर जीन वाइज जाना है तो आप जीन वाइज जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। सिंबल है, अलायंसेस है या आइडेंटिफायर है। चलो मैं जाता हूँ, एक ऑर्गेनिज्म का नाम डालते हैं, सॉरी प्रोटीन का नाम डालते हैं। मुझे चाहिए अल्डोलेज ए, क्योंकि हमारा कॉमन स्टडी है उसी पे। देखिए जैसे मैंने लिखा अल्डोलेज ए, उसने दे दिया है मुझे अल्डोलेज ए। आपको ए चाहिए तो ए ही सिलेक्ट करो, बी मत लेना, ठीक है? इसको आप प्लस करके देख लीजिए, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? देखो यहीं पे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, अल्डोलेज ए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जा रही है। सबसे पहली बात है कि उसके नेम क्या है, अलग अलग नेम है उसके, दिख रहा है? ये अलायंस है, मसल टाइप, अल्डोलेज फ्रुक्टोज, अल्डोलेज ए, अल्डोलेज फ्रुक्टोज बिस्फोस्फेट, ये सारे उसके कॉमन नेम्स है, ठीक है? इन नामों से भी उसको जाना जाता है। देन आपको अगर उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एनसीबीएम में जाके भी ले सकते। देखिए उसने दिया हुआ है यहाँ पे, उसने ये भी बोला कि अल्डोलेज 3 फॉर्म में मिलता है, ए, बी और सी, और वो 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे मिलता है, क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 10। ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है पर बहुत सुंदर दिया है। देन वेरिएंट्स दिए है उसके अंदर,
वेरिएंट्स यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी यह है SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी अगर कहीं म्यूटेशंस अगर हो जाते हैं आपके SNP एल्डोलेज में तो क्या डिसीज होता है, तो वो SNPs है, यानी ये क्लिनिकली लिंक्ड है, यानी ये आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस से एसोसिएटेड है, यानी ये कहीं ना कहीं डिसीज कॉजिंग जीन है, ये उसने बोल दिया है। ठीक है, यहाँ हम नहीं जाएंगे, हमारा मेन एम जो है इधर आना है, अल्डोलेज ए पे क्लिक करेंगे, अंदर आएंगे, उसके अंदर ये बहुत ही डिटेल्ड वेबसाइट है, यानी अगर आप इसको पूरा एनालिसिस करने जाओगे तो 5 दिन लग जाएंगे करते करते पूरा एक एक चीज, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हर चीज इसमें समझी जा सकती है। हमको ये सारे पैरामीटर देखने दिख रहे हैं आपको, ये सारे अलायंसेस है, पैरालॉक्स है, डिसऑर्डर्स है, पाथवेज है, डोमेन्स है, प्रोडक्ट्स है, इस तरह से आप इतने सारे पैरामीटर्स पे जा सकते हैं। तो हम धीरे 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 के कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज अलायंसेस। अलायंसेस मीन्स कॉमन नेम्स। आपने तो सिर्फ अल्डोलेज ए ही सुना होगा, बट अल्डोलेज ए कैन बी नोन बाय दीज मेनी नेम्स, ये तो है ही है, ये सारे नेम्स भी है उसके। सो इवन एपिडिडाइमिस सेक्रेटरी स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन Li87P, इस नाम से भी अल्डोलेज ए जाना जाता है, समझ रहे। तो कभी कभी आपको लिखा आएगा लंग कैंसर एंटीजन NYLU1, तो आप बोलोगे अरे दिस इज नॉट अल्डोलेज, पर ये कौन है, अल्डोलेज। मसल टाइप अल्डोलेज, इसका मतलब है कि ये अल्डोलेज है। ठीक है, आप बोलोगे मसल क्यों लिखा है, तो ये अल्डोलेज ए स्पेशली मसल में एक्सप्रेस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मसल टाइप अल्डोलेज ए। ये बता सकता है ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है ये क्या है। एंजाइम कमीशन नंबर। हाँ, इसी नंबर। इसको रीड कैसे करते हैं बताएंगे। पहला फैक्टर क्या है चलो ठीक है, बता सकता है कोई। Major class. Major class. मेजर क्लास। सेकंड, Subclass of that major class. थर्ड, ठीक है, अब चलते जाएंगे। इसको रीड करने का, इसको पढ़ते वक्त कैसे बोलते हैं, बोलने वाला भी एक स्टाइल है, कैसे बोलते हैं बताएं क्या, कि कोई बता सकता है। इसको कभी भी ऐसा नहीं बोलते 4.1.2.13, इसको कभी भी 13 प्रोनाउंस नहीं करते, आपको हमेशा प्रोनाउंस करना चाहिए 4.1.2.13। ये राइट टेक्निक है इसी नंबर की, कभी भी 13, 14, 15 नहीं बोलते, ये टेक्निक है। चलिए ठीक है, मैडम ने बहुत सही इंफॉर्मेशन दी, क्लास सब क्लास ये चीजें हैं। अब ये हमको समझ गए, ये सारे उसके नेम्स है, ठीक है, और ये उनके जीन के नेम्स भी है, देखिए यहाँ पे जीन के नेम्स भी दिए हुए उन्होंने, ये भी आइडेंटिफायर्स है अल्डोलेज ए जीन्स के। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे इसका क्या महत्व है, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि कभी कभी किसी पेपर में या किसी आर्टिकल में लंग कैंसर एंटीजन NYLU1 लिखा रहेगा, आप बोलोगे अरे अरे मैंने तो अल्डोलेज ढूंढा ढूंढा और यहाँ पे तो लंग कैंसर एंटीजन ए लिखा हुआ है, तो ये तो है नहीं, गलत है, और सही में उसका नाम ऑल्टरनेटिव नेम है ये, इसलिए उसको अलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे उसने दी हुई है। फिर सेकंड है समरी अबाउट दैट, अल्डोलेज ए एग्जैक्टली क्या करता है, तो यहाँ भी उसने पूरा फंक्शन दिया है कि क्या करता है। ठीक है, ये क्लास 1 फ्रुक्टोज बिस्फॉस्फेट अल्डोलेज प्रोटीन फैमिली का है, दिख रहा है लिखा हुआ है क्लास 1। क्या इनकोड करता है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, जो रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को ग्लिसराइल्डाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, इस तरह से उसने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी। देन ये उसकी समरी एज पर डिटेल इंफॉर्मेशन विद मेटाबॉलिक लिंकिंग, यानी जीन ऑन्टोलॉजी से की हुई है। अब आप बोलोगे ऑन्टोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कोई भी जीन यानी उसका प्रोटीन 3 टाइप की एक्शन करता है सेल के अंदर, ठीक है। एक होता है मॉलिक्यूलर फंक्शन, दूसरा होता है लोकलाइजेशन ऑफ दैट प्रोटीन यानी सेकंड फंक्शन, और थर्ड है
व्हाट यू कैन से बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी 3 चीजें क्या करता है वो समझ लेना, बायोकेमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलर फंक्शन और लोकलाइजेशन। इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो उसको बोलते हैं जीन ऑन्टोलॉजी। ठीक है, तो तीनों का जब स्टडी होता है तो उसको बोलते हैं जीन ऑन्टोलॉजी। तो जीन ऑन्टोलॉजी अगर इसकी सेट है, इसका मतलब है कि इसको अच्छे से पढ़ा गया है, यानी ये बहुत सेट प्रोटीन है। देन ये बाकी की चीजें तो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हम प्रोटीन में अभी गए नहीं। यहाँ पे देखिए जीनोमिक लोकेशन फिर से दे दिया गया है आपके पास में, जीनोमिक लोकेशन यहाँ पे आपको मिलते जा रहे हैं। और जीनोमिक्स में स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको प्रमोटर और इनहांसर्स की रीजन्स बताई जा रही है कि प्रमोटर कहाँ पे है और इनहांसर्स का रीजन कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स, 330 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं आपके इस प्रोटीन को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इस तरह से सारे लिखे हुए सारे की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। देन उसकी जीनोमिक लोकेशंस आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल रही है। देखिए ये जो बैंड्स थे, ये कौन से बैंड्स है मैंने बताए थे, कौन से बैंड्स है, मैंने छुपा दिया नाम, ये कौन से बैंड्स थे, भूल गए साइटोजेनेटिक बैंड। हाँ, साइटोजेनेटिक बैंड्स, साइटोजेनेटिक बैंड्स है, बराबर है, बिल्कुल सही। और ये जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ भी उस जीन का लोकलाइजेशन है। 16p11.2 दिख रहा है आपको, ये p11.2 साइटोजेनेटिक बैंड 16th नंबर का क्रोमोसोम है और ये 16 के p11.2 बैंड के अंदर मिलता है आपका क्रोमोसोम, समझ रहे हैं। फिर इसके अंदर और एक इंफॉर्मेशन है जीनोमिक नेबरहुड। जीनोमिक नेबरहुड यानी उसके आजू बाजू में जो जीन्स है वो पता चलेंगे। फिर आपको पता चलेगा एक्सॉन का स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सॉन के स्ट्रक्चर्स, अल्डोलेज ए कोड्स बाय दीज मेनी एक्सॉन्स, आपको दिख रहे हैं, यानी इसमें इतने सारे एक्सॉन्स है, समझ रहे हैं, ये एक्सॉन रीजन है उसके। क्योंकि आप जब भी क्लोनिंग की बात करते हैं या एक्सप्रेशन की बात करें तो आपको सब कुछ पता रहना चाहिए उस जीन के बारे में। तो दिख रहा है यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सॉन है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा, इस तरह से सारे एक्सॉन्स है। फिर अकॉर्डिंग टू एंसेंबल दिया हुआ है, ये रीजन है। अलग अलग सर्वर्स ने अलग अलग रिपोर्टिंग दी हुई है क्योंकि उनके पास अलग अलग एंट्रीज होती है। ये आपको समझ गया एक्सॉन स्ट्रक्चर। देन proteins of aldolase A products antibodies for research, ये थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में प्रोटीन बायोलॉजी समझाई थी, है ना, उस पे मैंने आपको 2D जेल पढ़ाया था, याद होगा तो। 2D जेल में हमने एक स्पॉट डिटेक्ट किया था, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का मान के चलते अल्डोलेज था, तो उसको मैंने बोला था आपको क्या बनानी है, उसके खिलाफ क्या बनानी है, एंटीबॉडी। तो आपका अल्डोलेज कौन बन गया है, आपका अल्डोलेज कौन है, एंटीजन है, राइट, एंटीजन। एंटीजन है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। तो एंटीबॉडी कौन सप्लाई करेगा आपको, हु विल गिव यू एन एंटीबॉडी अगेंस्ट अल्डोलेज ए, दिख रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है, एंटीबॉडीज फॉर रिसर्च, इसको क्लिक करिए। देखिए ये यहाँ पे आपको, अच्छा आया नहीं शायद, क्लिक नहीं कर, लिंक नहीं आई, लिंक आई नहीं उसकी, ठीक है, नीचे होगा तो नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि प्रोटीन के डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गए हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपका जो अल्डोलेज ए जीन है वो कितने अमीनो एसिड्स का है, दिख रहे हैं यहाँ पे 364 है, उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट है, उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। ये क्या है, होमो टेट्रामर, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस होमो टेट्रामर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यानी आपका अल्डोलेज ए
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बोलते प्रोटीन के अंदर, और वो कौन है? होमो टेट्रामर। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज होमो टेट्रामर मीन्स? Four identical subunits means a homotetramer. हाँ, तो सब यूनिट यानी क्या? सब यूनिट यानी क्या? सब यूनिट यानी देखिए क्या हो रहा है कि आपका जो अल्डोलेज ए प्रोटीन है वो एक ही जीन का प्रोडक्ट है। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? एक ही जीन का प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि और एक ही जीन का प्रोडक्ट है पर वो जीन के टेट्रामर है वो, यानी वो जीन आपका जब एमआरएनए फॉर्म करेगा, एमआरएनए से 4 पॉलीपेप्टाइड बनेगी समझ लो, ठीक है? वो चारों पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगी और वो बनाएगी होमोटेट्रामर। समझा क्या? यानी इसमें किसी और जीन का पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व नहीं हुआ। समझा क्या? अल्डोलेज ए बनाने के लिए प्योर है वो, यानी एक ही जीन से उसका प्रोडक्ट बन रहा है। समझ रहा है कि नहीं? सबको समझा कि ये पॉइंट होमोटेट्रामर? Yes, sir. हाँ हाँ, ओके, ये उसका मेन चीज है। देन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये अभी स्किप करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। प्रोटीन एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है पर ये अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमने प्रोटीन बायोलॉजी में गए नहीं है, ये जब जाएंगे तब आगे पढ़ेंगे। यहां लिखा है देखो कुछ, यूबिक्विटिनेशन, फॉस्फोसाइड्स। अच्छा ये है, इसका मतलब है कि क्या मैं अल्डोलेज ए का प्रोटीन इकोलाई में एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको तो कोई मुझे बताएगा? यहां लिखा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं अल्डोलेज ए जीन में। कौन सी जगह पे? यूबिक्विटिनेशन है, फॉस्फोराइलेशन है। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरा जो जीन है या मेरा जो एमआरएनए है वो इकोलाई में एक्सप्रेस करूं या ना करूं? अभी बताया था ना मैंने। सर नहीं होगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस नहीं होगा, राइट, करेक्ट है मैम। एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, यानी इस प्रोटीन को फंक्शन करने के लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। आप उसको एक्सप्रेस इकोलाई में नहीं कर सकते टू मेक अ फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है? फिर यहाँ आते, देखिए यहाँ लिखा है एंटीबॉडीज फॉर रिसर्च। हमने तभी ऊपर क्लिक किया था, आया नहीं था, पर यहाँ से आ जाएगा। तो दिख रहा है ये सारी कंपनीज है, दिख रही है आपको भी, जो आपको अल्डोलेज ए के खिलाफ एंटीबॉडी बना के दे सकती है। हमने तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर दी थी ना सुबह, हमने पहले भी बहुत पढ़ा था ये 2D जेल में हमको एंटीबॉडी लाना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, पर कौन सप्लाई करेगा ये हमको पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ दी हुई है, देखिए एंटीबॉडीज फॉर रिसर्च, दीज आर द कंपनीज व्हिच आर सप्लाइंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट अल्डोलेज ए, ठीक है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कंट्री में कौन सी सर्विस अवेलेबल है। जैसे हमारे इन विट्रोजेन है, ठीक है, नोवस भी है हमारे पास में, ओरिजिन भी है। तो ये 3 जो है हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा सांता क्रूज आई डोंट नो, बट मुझे लगता है इन विट्रोजेन इज अवेलेबल, नोवस इज अवेलेबल एंड ओरिजिन इज आल्सो देयर। तो चलो एक को क्लिक करके देखते हैं कि क्या देता है वो चीज। मैं नोवस को क्लिक करके देखता हूं। देखिए उसने आपको एंटीबॉडी की डिटेल दी थी कि हम क्या करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अल्डोलेज ए एंटीबॉडीज, दिख रहा है? और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? एलाइजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनोकेमिस्ट्री में, इम्यूनोफ्लोरोसेंस में, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में, है ना, इस सैंडविच एलाइजा में, इवन वेस्टर्न ब्लॉट में भी देखो, यानी हम वहां पे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये 100 माइक्रोलीटर में आपको मिलेगा। और रिएक्टिविटी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? ह्यूमन मस्ट मस्कुलस यानी माउस रैट के साथ में भी है और जेब्रा फिश के साथ में भी है। समझ रहे हैं? यानी आपका अल्डोलेज ह्यूमन का रहे, माउस का रहे,
रैट का रहे या जेब्रा फिश का रहे, वो उसके साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। और होस्ट कौन है? रैबिट मोनोक्लोनल। कोई मुझे समझाएगा ये क्या मीनिंग है रैबिट मोनोक्लोनल? होस्ट क्यों बोला है? नहीं, होस्ट लिखा है, होस्ट। यहाँ पे रैबिट मोनोक्लोनल लिखा है। होस्ट कौन है? रैबिट होस्ट है। अब मुझे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूलर लैब में जाओगे, आपका पहले शुरुआत यही से होता है। वो पूछेगा, हाँ आपको एक अल्डोलेज है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है, तो वो पूछेगा कैसे बनाओगे आप, है ना, प्रोसेस पूछेगा जनरली। तो क्या प्रोसीजर है? हाँ सीधा मैडम, यू कैन स्विच ऑन योर माइक अगर कंफर्टेबल हो तो। हाँ सर प्लीज। हाँ देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आपके पास में एक होमोसैपियन का अल्डोलेज जीन है, और उस जीन ओके, के खिलाफ मुझे एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है। तो आपका एल्डोलेज कौन बन गया? एंटीजन। एंटीजन बन गया। जी। तो मुझे रैबिट से एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? इसका कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर। कोई आइडिया नहीं? ओके ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। हाँ सबसे सर। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक नाइव रैबिट ग्रो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाइव। मुझे स्पेलिंग नहीं आता नाइव का। हाँ? पहले पहले सही था सर। पहला सही था ना? एन हाँ। नाइव, राइट। एन आई ए, एन आई ए, एन आई, एन आई ए वी ई। मेरा नहीं। मेरा इंस्टिंक्ट करेक्ट था नहीं। हाँ नाइव सर रैबिट, सही था। नाइव रैबिट ग्रो करना पड़ेगा। आप बोलोगे व्हाट इज नाइव रैबिट? नाइव रैबिट ऑब्वियस यानी, डिजीज नहीं होगा वो बिल्कुल हाँ, भी। वो कभी भी प्री एंटीजन एक्सपोजर फ्री रहेगा। प्री एंटीजन एक्सपोजर फ्री, इसका मतलब ये है कि उसको ऐसा ग्रो किया होता है कि उसके जिंदगी में जैसे वो, कनेक्ट झालं, स्क्रीन दिसत आहे का? नाही तुमची स्क्रीन नाही दिसत आहे. तुम्ही लेट झाले सर. तुम्हाला पण जॉईन करायचं तुम्ही नाही यायचं.
ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मैं तो विजिबल नहीं, पर मेरा स्क्रीन दिख रहा है। Yes, sir. ओके, सो हम क्या करना चाह रहे हैं? Yes, yes, sir. ओके ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एक ऐसा रैबिट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं जो नाइव है, ठीक है? नाइव है यानी जब से वो पैदा हुआ तब से उसने कोई भी एंटीजन एक्सपोजर देखा ही नहीं, ठीक है? इस तरह से वो कंडीशन में ग्रो किया जाता है, यानी उसको इनक्लोज सिस्टम में ग्रो किया जाता है, ठीक है? इनक्लोज सिस्टम में, और तब तक उसको ग्रो किया जाता है जब तक उसकी वो एडल्ट या सब एडल्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाता, ठीक है? अब वो माउस या रैबिट रेडी है फॉर द इंजेक्शन, ठीक है? क्या करते हैं? इंजेक्शन। अब इंजेक्शन किसका करते हैं? हमको समझ लो अल्डोलेज स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है? अल्डोलेज स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनानी है, तो हम अल्डोलेज का एक पर्टिकुलर पार्ट उसके अंदर डालेंगे, ठीक है? पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं डालेंगे, उसका एक पेप्टाइड, क्या करेंगे? उसका एक पेप्टाइड उठा के उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अगर आपने एक ही पेप्टाइड सीक्वेंस पुट किया है, ठीक है? क्या सिर्फ एक ही पेप्टाइड पुट किया है, तो वो ऐसा एंटीबॉडी बनाएगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है? और अगर आपने अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स पुट किए हैं पर उसी प्रोटीन का है, समझ रहे हैं? यानी आपके अल्डोलेज ए को तोड़ के उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए और वो अलग अलग डाले हुए हैं, तो फिर वो बनेगा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है? यानी उसमें मिक्स रहेगा, जिसमें कुछ पार्ट पर्टिकुलर पेप्टाइड को सिलेक्ट चिक करेंगे, कुछ दूसरे को, ठीक है? अब जैसे ही आप उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे ना ये पेप्टाइड्स, सो ये पेप्टाइड्स विल एक्ट लाइक एन एंटीजन, है ना? क्या एक्ट करेंगे? लाइक एन एंटीजन। तो जैसे ही आपने एक पेप्टाइड इंजेक्ट किए, अब वो नाइव रहा क्या? नहीं, तो उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड। क्या हो गया वो? इंड्यूस्ड। तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो पहली बार अपने लाइफ में एंटीबॉडी बनाएगा, बराबर? एंड दोज ऑल एंटीबॉडी विल रिमेन प्योर। समझ रहा है क्या आपको? सबको समझा? Yes, sir. और जैसे ही वो एंटीबॉडीज वो बनाएगा, वो प्योर एंटीबॉडीज बनेगी, हम उसको सैक्रिफाई करेंगे या फिर उसका ब्लड निकालेंगे और उसके अंदर से सीरम आइसोलेट करेंगे, है ना? और सीरम से हम उसके एंटीबॉडी को सेपरेट कर देंगे, ठीक है? और वो बन जाएगी आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बाकी की प्रोसीजर उसके अंदर होती है, ठीक है? और अल्टीमेटली आपको प्यूरिफाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिल जाएगी। अब आपको समझ रहा है सारी चीजें? Yes, sir. हाँ, ये बहुत डिटेल है, हर चीज में आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे पॉलीक्लोनल है, दो अलग अलग साइज इसके भी हैं, सैंपल साइज अवेलेबल, अनकॉन्जुगेटेड, ऐसा सब दिया हुआ है। माउस मोनोक्लोनल, अभी इसमें माउस में एक्सप्रेस किया हुआ है इसको। ये गोट पॉलीक्लोनल, देखो गोट में भी एक्सप्रेस किए हुए हैं। पॉलीक्लोनल है, अलग अलग है, दिख रहा है? इस तरह से आपको दिख रहे हैं सारी चीजें। ये आप मंगवा सकते हैं, ठीक है? इसकी कॉस्टिंग होती है। आप चलो मान के चलते कि मुझे एक ही चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको मैं ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करते हैं और ये सारी डिटेल्स उसने दिए हुए कि कैसे कैसे उसका डाइल्यूशन करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, उसका थेरोटिकल मॉलिक्यूलर वेट कितना है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है, कौन से बफर में उसको रखा गया है, देखो इसमें लिखा हुआ है ना? BSA है, बोवाइन सीरम अल्बुमिन है, 40% ग्लिसरॉल है, TBS है, ट्रिपल बफर सॉल्ट्स है, सोडियम अजाइड प्रिजर्वेटिव उसमें डाला है, 1 mg पर ml उसका कॉन्सेंट्रेशन है, और प्रोटीन प्यूरिफाइड। ये सारा उसमें दिया हुआ है। कैलकुलेटर भी है आपको अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो,
ठीक है। और अब आप इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर सेटअप होता है, आप इनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको प्राइसिंग बता देंगे और आपके लैब में वो रिच कर देगा, पहुंचा देगा। देखिए इंडियन नंबर भी दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वीरेंद्र शर्मा से आप बात कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो जो चीजें हम बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में थेरोटिकली समझते थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रियलिटी में दिख रहा है कि आप कैसे उसको काम कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में ये वेबसाइट आपकी बहुत काम में आएगी जब आप लैबोरेटरी में काम करेंगे, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम यहां से गए थे, याद है सबको, तो आपको एंटीबॉडी मिल गई। अगर आपको प्योर प्रोटीन ही चाहिए अल्डोलेज का तो भी आपको मिल सकता है, दिख रहा है यहाँ पे, ये प्योर प्रोटीन भी सप्लाई करते हैं, दिख रहा है, प्रोटीन्स एंड लाइसेट्स। आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लाइसेट चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन प्यूरिफाइड प्रोटीन चाहिए तो प्यूरिफाइड प्रोटीन आप ले लीजिए, यहां से आपको प्यूरिफाइड प्रोटीन वो आपको सप्लाई कर देंगे। देखिए दिख रहा है, ह्यूमन मास स्पेक्ट्रा स्टैंडर्ड बेस आपको प्रोटीन मिलेगा, ये एक्सेशन नंबर वाला प्रोटीन मिलेगा, दिख रहा है। इसका जो सीक्वेंस होगा NM000034 वो इतने किलो बेस पेयर का डीएनए है और ये प्यूरिफाइड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितना का है देखो, 10 माइक्रोग्राम अल्डोलेज ए जीन कितने यूएस डॉलर का है, कितना है 2.2600 यूएस डॉलर्स, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है 36,000 यूएस डॉलर्स का है, ठीक है। 36,000 यस 36,000 यूएस डॉलर। अगर मैं 36,000 यूएस डॉलर को 36,000 यूएस डॉलर को आज के रेट के हिसाब से 75 रुपए पकड़ लेता हूं तो 27 लाख रुपए का एक डीएनए है, एक जीन, समझा क्या आपको, कितने का है 27 lakh. 27 lakh. तो हम बायोटेक्नोलॉजी में बड़ी आसानी से बता देते हैं, जीन ले लिया, वेक्टर ले लिया, क्लोन कर दिया, बट उसको काम करने में जब जाते ना तो हमको समझ में आता है कि कितना मुश्किल है ना। देखिए यहाँ पे और भी चीजें दी हुई उन्होंने, दिख रहा है रैबिट एंटी ALDO पॉली एंटीबॉडी भी दी हुई है। अगर आप एंटीबॉडी उसकी खरीदना चाहते हो तो 25,000 यूएस डॉलर्स की है, ठीक है। सो अगर आप इसको 25,000 को फिर से कन्वर्ट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, कम से कम 20 लाख का तो आपका प्रोटीन ही आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करिए बायोलॉजिकल साइंस कितना मुश्किल है, और जो पर्सन इसके ऊपर काम कर रहा है या ये जो कंपनी है उसका टर्नओवर कितना होगा, समझ रहे हैं आपको। इसलिए ये इंटेलिजेंट साइंस है, इसको अपन मगअप नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं होता। और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज भी इंडिया में फ्लरिश नहीं करते, और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आज भी आपको परमानेंट जॉब नहीं देते गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चरशिप के लिए नहीं बनी है, ये पूरा R&D सेक्टर है, इसमें आपको पूरा मेहनत करके आपको खुद को रिसर्च प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। सो ये इतना मुश्किल होने के कारण ही थोड़ा सा टफ जाता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि कितना मुश्किल है एक प्रोडक्ट मिलना उसका। देन उसके डोमेन्स एंड क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, ये हम नहीं देखेंगे, ये हम जब हम पूरा प्रोटीन का पार्ट देखेंगे तब इसके ऊपर वापस आके इसका समझेंगे कि डोमेन्स एंड फैमिलीज क्या होती है, उसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, जीन ऑन्टोलॉजी दी हुई है, ठीक है। तो यही आज हम रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे का पार्ट जो ये पूरा प्रोटीन का बायोलॉजी है, प्रोटीन बायोलॉजी अभी हमने कुछ समझी नहीं है इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। हाँ हम यहाँ जरूर जा सकते हैं, जैसे मैडम को मैंने तभी क्वेश्चन पूछा था ना, सॉरी ये
ये वाला जो था, मुझे एक रैबिट चाहिए, है ना, कहाँ चला गया, हाँ, मुझे एक रैबिट चाहिए या रैट चाहिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है 45 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा मुझे कोई मॉडल चाहिए तो आपको वो भी यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है, ये दिख रहा है क्रिस्पर प्रोटीन, ये नॉकआउट जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आजकल क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, जितने भी बीएससी और एमएससी के बच्चे हैं उन्होंने इसको पढ़ लेना है। ये ये अभी फ्यूचर में अगले 5 से 8 साल में बहुत चलने वाला टेक्नोलॉजी क्रिस्पर, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, जीन नॉकआउट सिस्टम क्या है, और इसका रिसर्च में कैसे एप्लीकेशंस करते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। आजकल ये बहुत चल रहा है और बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर आप इसके होशियार बच्चे बन गए तो शायद आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्रिस्पर नॉकआउट टेक्नोलॉजी है, इससे प्रोडक्ट्स पर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ इसमें कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से भी आप वेक्टर्स ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ नॉकआउट वाले पे, सो जितना आप बुक्स पढ़ते हो ना उतना ही आप वेबसाइट्स को भी पढ़ो, जो कमर्शियल वेबसाइट्स होती है ना उसको, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे हमारे साइंस को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के कुछ नहीं होने वाला आपको। जैसे अब यहाँ लिखा है ना, देखो वेक्टर बिल्डर, यहाँ पे वेक्टर फॉर ह्यूमन अल्डोलेज ये लिखा हुआ, ये पूरा पढ़ो, एक बार नहीं समझा 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तब आपको धीरे धीरे उसमें की चीजें समझ में आए। तो ये तो सारा बेसिक ऊपर का सबको पता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर मिल रहे हैं आपको, दिख रहा है, मैमिलियन जीन एक्सप्रेशन वेक्टर, मैमिलियन जीन एक्सप्रेशन लेंटिवायरल वेक्टर, एडिनो वायरल वेक्टर, एडिनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर, पढ़ा है ना हमने, पवार एंड दागिन वाला तो हमने पढ़ ली है बहुत सारी। और यहाँ पे मार्कर्स है, आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा मार्कर उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास में ईजीएफ है ना, ग्रीन फ्लोरोसेंस मार्कर है, प्रोटीन मार्कर है। तो ये अगर आपको चाहिए तो इसकी पूरी गाइडलाइन है, पहले गाइडलाइन आप देख लीजिए न्यू लिंक में जाके, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एडिनो एसोसिएटेड वायरस क्या होता है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर हमको नोट्स नहीं मिल रहे एडिनो एसोसिएटेड वायरस के, यहाँ पे आ जाइए सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए टिश्यू टाइप के हिसाब से भी है, दिख रहा है कौन से टिश्यू में एक्सप्रेस करना है, उस हिसाब से वायरस है, दिख रहा है आपको। तो आप उसको चूज करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल है, मैं इतना डिटेल जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया। आप यहाँ पे व्यू वेक्टर जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली वो शोकेस करेगा कि वो कैसे दिखता है। ये रेडीमेड है, इसके अंदर ऑलरेडी अल्डोलेज ये जीन डाला हुआ है, आप सिर्फ उसको पैसा दीजिए आपके लेबोरेटरी तक पहुंच जाएगा। देखिए ये आपका वेक्टर दिख रहा है, रेडीमेड वेक्टर है, कुछ नहीं करना है आपको। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे, पक ओरिजिन है, पक ओरियन है, पक एक वेक्टर है, उसका ओरी सीक्वेंस लिया हुआ है। ओरियन समझता है ना, कोई बता सकता है? ओरी यानी क्या? Origin of Sir, replication. ओरिजिन ऑफ व्हाट? Replication. यस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी यहाँ से रेप्लिकेशन उसका यहाँ से शुरू होगा इसके अंदर। और ये पक का है, यानी पक प्लाज्मिड के अंदर का ओरिजिन सीक्वेंस यहाँ पुट किया हुआ है। ये कंप्लीटली जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ठीक है। फिर 5 प्राइम आईटीआर रीजन है, इंटर ट्रांसक्राइब रीजन, फिर ये कॉलीफॉर्म मोजाइक वायरस का रीजन है, ओजैक सीक्वेंस है, ये सारा उसका डिटेल दिया हुआ है उन्होंने। ये ईजीएफ मार्कर है, ये आपका ग्रीन फ्लोरेसेंस मार्कर है, ठीक है। और इस तरह से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। आपका अल्डोलेज जीन यहाँ पे दिख रहा है, ये वो सीक्वेंस है उसका, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस देखना है तो देखिए ये सीक्वेंस है उसका जो दिया हुआ है ना अभी, जो मार्क में दिख रहा है। और यहाँ पे आपको देखो एटीजी दिख रहा है, एटीजी, उसके साइड में ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसको कोजैक को क्लिक करिए, दिख रहा है कोजैक,
ठीक है, समझ रहे? अब आप एज अ स्टूडेंट धीरे 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 हर चीज समझने की कोशिश करोगे। CMV, ठीक है, ये CMV रीजन है, फिर ये इंटर ट्रांसक्राइब रीजन है। आप बोलोगे ये क्या चीज है? ये एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है, आपको एक्सप्रेशन वेक्टर बनाना है ना। ये कौन से टाइप का वेक्टर है? एक्सप्रेशन वेक्टर है ना, एडिनो एसोसिएटेड वेक्टर है, एसोसिएटेड वायरस वेक्टर। तो इसने जो एडिनो एसोसिएटेड का जो जीनोम का है उसका सीक्वेंस लेके आपको यहाँ पे कोडिंग सिस्टम दी हुई है, ठीक है। और ये हर चीज आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है, इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट allows replication of the viral genome and its packaging into the virus। हर एक चीज का दिया। प्रमोटर कौन सा रीजन है? देखिए 169 to 757 CMV प्रमोटर है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर may have variable strength in some cell types, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, 45 डिग्री सेल्सियस पे ही वो एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर, ठीक है। अब ये CMV उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रमोटर है, इंड्यूसिबल प्रमोटर नहीं है। कोजैक, कोजैक क्या है? ट्रांसलेशन इनिशिएशन सीक्वेंस। इतना सुंदर है, हर चीज आपको पता चल रही है। फिर ORF यानी कोडिंग सीक्वेंस, मैंने आपको समझाया था ना, जीन नहीं डालते उसके अंदर, ना ही mRNA पुट करते, हम क्या पुट करते हैं? ओपन रीडिंग CDS, हम CDS वहां पे बिल्कुल पुट करते हैं, और ये आपको यहाँ पे पता है। फिर T2A यानी लिंकर है, सेल्फ क्लीविंग 2A पेप्टाइड फ्रॉम थोजिया अजाइना वायरस, यानी एक बार प्रोटीन बन जाएगा ना तो प्रोटीन को बाकी प्रोटीन से अलग करना है, इसलिए यहाँ पे क्लीविंग साइट डाल दी है, ठीक है। आपको वो एंजाइम कुछ पुट करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है एक्सप्लेन करना हर चीज। फ्लोरोसेंस से ये पता चल जाएगी कि हाँ आपका प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, यानी जितना फ्लोरोसेंस होगा उतना ही समझ जाना कि आपका अल्डोलेज ए प्रोटीन बन रहा है। अगर आपको फ्लोरोसेंस नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि अल्डोलेज ए भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर स्टेबिलिटी के लिए है, पैकेजिंग के लिए। फिर पॉली ए सिग्नल है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन पॉलीएडिनेटेड सिग्नल, यानी पॉली टेल ऐड करने के लिए। फिर आईटेल इन्वर्टेड टर्मिनल, यहाँ पे रुक जाएगा, है ना, पैकेजिंग हो जाएगा। ये सारी चीजें दी हुई है। अलाउज इकोलाई टू बी रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। मुझे कोई ये बताएगा कि ये जीन ये क्यों डाला हुआ है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्यों डाला है वेक्टर के अंदर? ये समझ के बंद कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट Whether Z has inserted it or not as a marker. हाँ, पर कैसे पता करेंगे? थोड़ा और डिटेल बताएंगे। इंसर्टेड और नॉट, किसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ? किसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं आपको। देखिए क्या हो रहा है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा ना, यहाँ पे हमारे पास एक काइमेरिक सीक्वेंस है, ठीक है। काइमेरिक सीक्वेंस कौन है? यहां से आया था ना, एक हमारे पास काइमेरिक सीक्वेंस कौन है? ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ना, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कौन है? कौन है बताइए? काइमेरिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके अंदर अल्डोलेस डल गया है ना। अगर ये यहाँ नहीं रहता तो ये नॉर्मल सीक्वेंस रहता, मान के चलते भले वो काइमेरिक ही है, पर हमारे लिए अभी भी कोई काम का नहीं रहता। पर अभी जैसे हमने उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है तो मेरे लिए काइमेरिक हो गया है। एक्चुअली काइमेरिक तो तभी हो गया जब ये जेनेटिकली इंजीनियर किया, ठीक है ना।
ओरिजिनल को हमने अगर किसी से जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया तो उसको हम काइमेरिक बोल रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी हमको यहाँ पे हम उसको काइमेरिक बोल रहे हैं कि इसकी पूरा का पूरा है, एमआरएनए भी है यानी जो अल्डोलेज है, उसके साथ साथ में बाकी जीन्स भी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास काइमेरिक सीक्वेंस है, यानी मेरे पास कौन है, प्लाज्मिड है, राइट। फिर नेक्स्ट कौन है, होस्ट। अब प्लाज्मिड होस्ट के अंदर कौन से प्रोसेस से जाता है, बताएंगे कोई, कौन सी मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपने सुना होगा ना, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से डालते हैं हम। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलिए कि आज मेरे पास में एक सेल लाइन है, ठीक है, एक सेल लाइन है जो मेरी होस्ट है, ठीक है, और ये प्लाज्मिड वेक्टर जो है, एडिनो एसोसिएटेड वेक्टर जो है ना, ये ए वेक्टर, ये मेरी काइमेरिक सीक्वेंस है। तो जब इस सेल लाइन के अंदर मैं इसको पुट करने की कोशिश करूंगा तो वो हो जाएगा, कौन सी मेथड हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो एक्चुअल ऐसा होगा, मेरा प्लाज्मिड प्लस सेल लाइन, ठीक है, ये एक सेट हो गया, मेरा प्लाज्मिड कॉमा मेरी सेल कॉमा, यानी मेरे पास अब 3 सेट है, P प्लस C, ओनली P और ओनली C, यानी मेरे पास 2 टाइप के सेल्स है अभी एक्चुअली, कौन से, P प्लस C और एक ओनली C, यानी एक के अंदर प्लाज्मिड पॉजिटिव हो गया वो, यानी C प्लस हो गया, है ना, बराबर है ना, और ये क्या हो गई, C नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव, क्योंकि प्लाज्मिड उसमें गया ही नहीं, प्लाज्मिड इंसर्ट नेगेटिव। समझ रहे क्या, सबको समझा क्या, मैडम आपको समझा क्या, यस सर। हाँ, उसमें इंसर्ट ही नहीं हुआ, वो तो नेगेटिव हो गया, बट डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना, कि P प्लस C है या ओनली C है। वो करने के लिए क्या करेंगे, सेल लाइन को जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उसके बाद में उसको एम्पीसिलिन का स्ट्रेस देंगे, समझ रहे, एम्पीसिलिन का स्ट्रेस देंगे। तो एम्पीसिलिन का स्ट्रेस देने से क्या होगा, एम्पीसिलिन का स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, कौन मरेगा, C मरेगा या P प्लस C मरेगा, कौन बचेगा, P वाला लाइव रहेगा बिकॉज उसका जीन इंटैक्ट है। P प्लस C वाला लाइव रहेगा, राइट, है ना, वाइल C वाला क्या हो जाएगा, डेड। क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिव है, सेंसिटिव फॉर दिस, सो ओनली P प्लस C, यानी क्योंकि P आपका जो वेक्टर है एम्पीसिलिन एक्सप्रेस करेगा, इसलिए उसके बॉडी के अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक्चुअली एम्पीसिलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन क्रिएट कर रहा है। तो सेल के आजू बाजू में अगर एम्पीसिलिन भी रहेगा ना तो भी ये उसको अलाउ नहीं करेगा बॉडी के अंदर आने के लिए, और उससे हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये वो सेल है जिसके अंदर वेक्टर एक्चुअली गया है, ठीक है। फिर अगली स्टोरी शुरू होगी, अगली स्टोरी शुरू होगी यहां से, किसके साथ में, EGF। ये आपका मार्कर है, डिटेक्शन मार्कर कि आपका प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेस हो रहा है यानी ये दिखेगा, और ये किसके कंट्रोल में है, इसके CMV के, ये प्रोमोटर रीजन के, और ये प्रोमोटर रीजन यहां से शुरू होते आ रहा है, धीरे धीरे सबसे पहले अल्डोलेज को बनाएगा, अल्डोलेज बनाने के बाद में बनाएगा EGF, EGF होने के बाद में ये पूरा आगे तक आएगा और यहां जाके रुक जाएगा। तो जितना प्रोटीन EGF बन रहा है उतना ही प्रोटीन किसका बन रहा है, अल्डोलेज। पर जब वो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स आने कहां तक मालूम है, यहां तक,
आपके अल्डोलेज के साथ में कौन अटैच रहेगा? EGF। पर इन दोनों के बीच में एक जॉइंट है, दिख रहा है आपको? ये T2 है, ये T2 है ना, ये T2A कौन है? T2A क्या है? सेल्फ क्लीविंग 2A पेप्टाइड फ्रॉम थोजिया अजाइन वायरस, ठीक है। So causes co-translational cleavage of encoded polypeptide. Multiple protein can be made by polycistronic transmit. यानी जैसे ही ये प्रोटीन बनेगा यहाँ से टूट जाएगा, बनने के बाद पर, ठीक है, थोड़ी देर में टूट जाएगा। इस तरह से उन्होंने सुंदर वेक्टर बनाया है और ये बहुत काम की चीज है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ये कितने का है? देखिए यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है, $99 का है, ठीक है ना, कंट्रोल वेक्टर। फिर आप प्लाज्मिड डीएनए प्रिपरेशन $49 की, AAV पैकेजिंग $400 की, और टोटल गेट प्राइस करेंगे तो आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। सो जितने भी बायोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, अब आपको समझा कि वेक्टर बनाना, वायरस बनाना या जेनेटिकली इंजीनियर करना आसान या कम पैसे की बात नहीं है, नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना पैसा आपको कौन देगा? जब तक आप होशियार नहीं बनोगे तब तक आपको कोई $1 भी नहीं देता, डॉलर की तो छोड़ ही दो, है ना। सो आपको यहां तक रीच करने के लिए, यानी इस लेवल तक रिसर्च करने के लिए, अगर आप आज की डेट में 22.5 से 23 साल के होंगे, जब तक आप 35 प्लस नहीं होते तब तक आप यहां तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। क्योंकि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस लगेगा ये सारी चीजें समझने के लिए, और आप बहुत अच्छे हो कि आपने 21.5 साल में इसको समझना शुरू कर दिया। एटलीस्ट यू नो द डेप्थ ऑफ दिस रिसर्च, कि कितना मुश्किल है और कितना महंगा प्रोसीजर है ना। पहले जैसा नहीं रहा, अभी आपको हर चीज कॉस्टली है, हर चीज, और आप रिवर्स नहीं आ सकते इस चीज में, है ना। क्योंकि अगर आपने इसका कैलकुलेशन कर लिया पूरा, तो 1 करोड़ का सेटअप है पूरा, केमिकल्स का, लेबोरेटरी अलग है, ठीक है। ये सब कुछ फॉरेन में होता है, लोग काम करते हैं और लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमको भी इंडिया में भी इसकी तकनीक को डेवलप करनी पड़ेगी, और ये आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा पहले। जब तक आपको इसके पास नॉलेज नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये अभी और अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि जब मैं वेक्टर बायोलॉजी समझाऊंगा ना तब इसको फिर से समझाएंगे। ये तो अभी मैं सिर्फ जीन से गया हूँ, ठीक है। तो ये जीन से ये सारी चीजें हम पढ़नी है फिर से एक बार। ये भी मैं पढ़ाऊंगा जब जीन ऑन्टोलॉजी पढ़ाऊंगा तब। आप देख सकते हैं, आपके पास टाइम रहेगा तो आप जरूर उसको स्क्रॉल डाउन करिए, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये खत्म नहीं होता है, 5 दिन समझा सकते, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसको हम कल जब भी लेक्चर रहेगा इसको फिर से हम देखने वाले हैं, आगे की स्टोरी, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीन कार्ड, एंड अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे परसों पूछिएगा, कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है। फिर भी हम मैसेज डाल देंगे आपको कि कल लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। एंड एक चीज और थी कि संडे को हमारा एक लेक्चर रहने वाला है, विच इज अ वेरी स्पेशल लेक्चर, जहां पे एक मैडम आएगी आपको सिखाने, जो आपको सिखाएगी कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, ठीक है। आपको सुनना है कि नहीं सुनना है वो चीज? सुनना है सर। सुनना है ना, क्योंकि ये जितना भी आपको सॉफ्टवेयर दिखे, ब्लास्ट बनाया, ब्लास्ट कैसे बनाया होगा, है ना, किसी ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढा तो कैसे ढूंढा होगा, उसके लिए स्क्रिप्ट बनाई होगी ना, प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं। तो वो मैडम आपको दिखाएगी कि कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्राम के पीछे का बेस क्या होता है, और ये जो रिलेशन है, ये भी जैसे हम 25-26 लोग जो है, ये बहुत, अगर हम अच्छे से लिंक रहे तो शायद अगले 1-1.5 साल में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि हम ग्रुप बना रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा, जिसको इंडिया में हम पूरा चलाएंगे। आप सब लोग आई थिंक ग्रुप में भी ज्वाइन हुए हैं, तो इंडियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो ग्रुप है उसमें हम उसको सारा लिंकअप कर रहे हैं, और हम सर्च कर रहे हैं कि वो लोग जो इससे डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो आप भी जुड़िए, और जितना बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ो। मैं अभी भी समझा रहा हूँ आप लोगों को, जितना बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रो जितना भी पढ़ रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ो, क्योंकि आप अभी समझ रहे होंगे कि कितना आगे चला गया है साइंस, और हम आज भी वही पढ़ते हैं, जीन, जीनोम, प्रोटीन, ऐसा नहीं है, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
We should not waste our time. ठीक है, चलिए. So is there any question you can ask? Otherwise we'll close the session.